Good morning, students. I, Shruti Mishra, welcome you all in the another session of Chapter 11, Force and Pressure. In previous session, we have discussed some keywords from this chapter. Now, we will start the chapter part 1. First of all, we will discuss about force. Force is defined as a push or pull, or we can say force is a physical quantity that can change the speed, state, direction and dimension of an object. It means force is defined as a push or pull. Force, we can say it is a push or pull, but it is a physical quantity that can change the speed. Means if any object is moving, it can change the speed of the object. It can change the state of the object. It is in rest position. It can, if we will apply the force, it will start moving. It can change the direction of an object. Direction means if we will apply the force, it can change its direction also. And dimension of an object, it can change the dimension also of the object. Now what is push? A push is a force exerted away from the body. Push क्या है? It is a force which exerted away from the body. It push क्या करता है? किसी भी object को it force to exert away from the body. Hitting a snooker ball, kicking a football or pushing a car. These all are the examples of push. अगर if any car is in rest position, if you will push it, then क्या होगा? Car will start moving. So it can change the position of the object or anything. Like अगर उसको हम force exert करके we are pushing, means उसको अपने से दूर करें, exerting away from the body, it means it is a force which is also known as push. Now the next one is pull. A pull is a force exerted towards the body. Push क्या था? Exerted away from the body. Here you can see it is exerted away from the body. Push क्या था? Means किसी भी object को अपने से दूर करना. It is a push, धक्का देना. Okay. And what is pull? A pull is a force exerted towards the body. किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करना, खींचने को बोलते हैं पुल. मीन्स अपनी तरफ खींचने को, ड्रॉ करने को, अपनी तरफ ड्रॉइंग एनीथिंग towards the body is called the pull. Like here you can see the example. One man is pulling the cow. वो cow को क्या कर रहा है? अपनी ओर खींच रहा है. Exerted towards the body. वो अपनी तरफ खींच रहा है. Another example is drawing a bucket of water from a well. अगर आप well से water fill bucket को pull कर रहे हैं, खींच रहे हैं, then it is a example of pull. Playing tug of war. Tug of war में क्या होता है कि दो teams, they both teams are pulling the rope towards their body. वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं. So these all are the examples of pull. Now what are the application of force? A force is an effort that changes the state of an object at rest or in motion. Force is an effort. Effort है which can change the state of an object, whether it is rest or in motion. अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसको अगर हम फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो इट कैन चेंज द पोजीशन. मीन्स कि वो उसको वो मूव भी कर सकता है. इफ़ इट इज़ इन रेस्ट तो उसको मूव कर देगा, और इफ़ इट इज़ इन मोशन देन इट कैन ब्रिंग बैक टू द रेस्ट पोजीशन. इट कैन चेंज एन ऑब्जेक्ट्स डायरेक्शन एंड वेलोसिटी. वो किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर. इफ़ वन पर्सन इज़ मूविंग टूवर्ड्स द सपोज ही इज़ मूविंग स्ट्रेट, अगर आपने उसको फोर्स अप्लाई किया तो देन व्हाट हैपन, वो क्या हो सकता है कि इट कैन चेंज द डायरेक्शन. वो वापस पीछे की तरफ भी आ सकता है, या लेफ़्ट या राइट, जिस डायरेक्शन में भी आपने फोर्स अप्लाई किया, इट कैन चेंज द डायरेक्शन एंड द वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या होता है? The speed at which something moves in a particular direction is called its velocity. Means उसके speed को भी वो change कर सकता है. Force can also change the shape of an object. ठीक है, force apply करके we can change the shape of object.
The simple example is when your mother is making dough from the wheat flour. ठीक है, जो सिंपल जो आटे से वो डो बनाती हैं फॉर मेकिंग चपातीज एंड ऑल, तो वो क्या करती है, शी इज़ अप्लाइंग फोर्स, अप्लाई करती है ना फोर्स, तो इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जब वो फोर्स अप्लाई करती है तो क्या होता है, जो डो का शेप चेंज होता है, वो उसको बॉल के शेप में भी बना लेती हैं, वो उसको फिर फ्लैट भी कर देती हैं. तो इट इज़ चेंजिंग द शेप. सो मीन्स what we are, I mean to say कि force can also change the shape of an object. हम force अप्लाई करके किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को भी चेंज कर सकते हैं. Now force can change the state of motion of an object. An object is said to be in motion if it is moving by a certain speed in a particular direction. एक ऑब्जेक्ट को हम मोशन में कब बोलते हैं, जब वो एक सर्टेन स्पीड में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है. If the object is at rest, it means it is not changing its position. अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो it means it is not changing the position. वो अपनी जगह पे स्थिर है. With respect to an observing point means जहाँ पे जिस जगह पे वो रेस्ट में है वहाँ से उसको कोई मूवमेंट नहीं हो रहा. सपोज यू आर स्टैंडिंग नियर द रोड, और आप रोड के साइड पे खड़े हो एंड वन कार इज़ ऑल्सो पार्क देयर, तो क्या होगा, कार इज़ इन रेस्ट पोजिशन. बट इफ़ द कार स्टार्ट्स मूविंग तो क्या होगा, कार विल स्टार्ट एंड इट विल चेंज द स्पीड और इट विल कम टू इन मूविंग पोजिशन. और वो रेस्ट में नहीं रहा, वो स्टार्ट कर देगा मूविंग. बट वेयर आर यू, यू आर अगेन यू आर स्टैंडिंग एट सेम पोजिशन. आप अपनी जगह पे खड़े हो बट कार इज़ स्टार्टिंग मूविंग. तो क्या होगा, कार का डायरेक्शन चेंज होगा, कार का स्पीड चेंज होगा, वो अपना मूवमेंट बदलेगा, बट यू आर स्टिल स्टैंडिंग नियर बाय द रोड. हैंस इट हैज़ जीरो स्पीड. अगर वो कार रेस्ट में है तो इट मीन्स इट हैज़ जीरो स्पीड, उसका कोई स्पीड नहीं है, रेस्ट में है. व्हेन द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग इट मीन्स दैट इट्स पोजिशन इज़ बीइंग चेंज्ड. जैसे ही वो स्टार्ट होगा वो आगे की तरफ मूव करेगा, इट मीन्स इट विल स्टार्ट द पोजिशन, चेंज द पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट. मतलब जिस पॉइंट पे वो कार रेस्ट में था वहाँ से उसने अपना पोजीशन चेंज किया एंड इट हैज़ स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स द फ्रंट और बैक वॉट एवर. ओके, नाउ in order to move an object from one place to another, a force is required to bring that object in motion. In order to move an object, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अ फोर्स इज़ रिक्वायर्ड. एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है. ब्रिंग दैट ऑब्जेक्ट इन मोशन, उसको मोशन में लाने के लिए वी ऑलवेज नीड अ फोर्स. सपोज यू आर प्लेइंग अ क्रिकेट और वॉट एवर एनी गेम एंड यू आर यूजिंग अ बॉल अगर आपके पास है तो वो स्थिर है, इट इज़ इन रेस्ट पोजिशन. और उसको मूव कराने के लिए व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू अप्लाई सम फोर्स ऑन इट. यू आर प्लेइंग फुटबॉल, सो इफ बॉल इज केप्ट इन ग्राउंड तो इट इज़ इन रेस्ट पोजिशन, बट इफ यू वांट टू मूव इट then what we need to do, we need to apply some force on it, then only it will start moving, otherwise it will be at the rest position only. Not only this, a force applied onto an object can change its speed, bring it to rest, or even change the direction of its motion. Now another thing is कि if a force is applied onto an object can change its speed. अगर हम किसी चीज़ पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इट कैन चेंज इट्स स्पीड ऑल्सो. सपोज एक बॉल मूव कर रहा है, वो धीरे धीरे मूव करते करते स्लो होगा, तो क्या कर सकते हैं, अगर हम दोबारा उसको किक करेंगे तो वो क्या होगा, वो फिर उसका स्पीड चेंज हो जाएगा, वो फिर तेज़ी से भागेगा. ब्रिंग इट टू रेस्ट, और अगर उसको रेस्ट में लाना है देन ऑल्सो वी नीड टू अप्लाई सम फोर्स. हम उसे रोकेंगे तो रोकने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करना होगा, देन तब जाके वो क्या होगा, अगेन इट विल कम टू द रेस्ट पोजिशन. इवन चेंज द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, अगर उसके डायरेक्शन को भी चेंज करें देन ऑल्सो वी नीड टू अप्लाई सम फोर्स. क्या करना होगा, अगर बॉल मूव कर रहा है और हमें उसका डायरेक्शन चेंज करना है देन व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू अप्लाई सम फोर्स ऑन इट. हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तभी वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा. Hence we can say that force can change the state of motion of an object. So we can say that कि force can change the state of motion of an object. किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के स्टेट को चेंज करने के लिए we need to apply some force.